ਬੱਚਿਓ ਐਮਏ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆयाम ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਨਿਊਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਫਨ ਨਿਊਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਆयाम ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੌਇਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਟੀਫਨ ਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਿਰਣੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨ ਨਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਆयाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਆयाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਬਰਟ ਹਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹੂ ਗਵਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਗਵਰਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨ ਨਿਊਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਮ that has been seen much discourse and debate। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾय ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ you cannot imagine this world without power. So struggle for power is politics. If struggle for power is politics, then the way of life also evolves politics. Sorry, the way of life also evolves power. So without power there is no life. ਹੁਣ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ।
सो और जे राजनीति देखने को मिलती उत्ते पावर भी है, उत्ते फिर शक्ति भी है, उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की शक्ति के प्रतिरूप भी है सानू देखने को मिलते हैं। यही गल जिहड़ा है स्टीफन न्यूकस जिहड़ा हैगा वो करदा है। It is a term whose understanding is crucial how we humans view and live in our social world. So इस गल उत्ते जिहड़ी साडी ह्यूमन सिविलाइजेशन है या जिहड़ी साडी सिविलाइजेशन है उन्होंने इस गल उत्ते सोचना पऊगा कि असी एक समाजिक व्यवस्था दे विच जिहड़ा हैगा वो किस तरह रहना है। ठीक है, उस तो बाद इट इज़ अ कंसैप्ट गवर्नस आवर डेली एवरीडे लाइफ। मैं तुहानूं पहले दसता। So these dimensions or phases of power are approaches that can be used to study power relations. So उन्हें जिहड़ा ये तीन पक्षीय फेसिस की गल की है या तीन पक्षीय शक्ति के मूहां की गल की है, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। These dimensions of power, what he calls conceptual analysis, Lucas 1972. So Lucas ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। Lucas ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? Lucas put across an implicit proposition that level and effectiveness of power in a given institution. ठीक है जी, पावर किसी भी एक संस्था दे विच अलग अलग तरह नाल यूज की जा सकती है या उहदे जिहड़े अलग अलग जिहड़े प्रतिरूप है सानू देखण नूं जिहड़ा मिल सकते। ठीक है जी, मैं तुहानूं जिद्दां पहले भी दस्सिया तीन फेसिस डिसीजन मेकिंग पावर की गल कर रहा, फिर नॉन डिसीजन मेकिंग पावर की गल कर रहा और फिर आइडियोलॉजिकल पावर की गल कर रहा। सो जिहड़ा वन डायमेंशनल जिद्दां मैं कल तुहानूं दस्सिया सीगा, जिहड़ा वन डायमेंशनल व्यू पॉइंट है शक्ति का, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ कौन कर रहा है? ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रॉबर्ट डाहल ने किया है, फिर कोलिबिसी ने किया है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ व्यू पॉइंट है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। सो मैं कल तुहानूं दस्सिया सीगा कि तुहानूं ये जिहड़ा क्वेश्चन है तीन तरह के नाल या तीन स्वरूपों दे विच जिहड़ा है पूछा जा सकता है। मैं दोबारा क्वेश्चन अज तुहानूं बोलण लगा क्योंकि कल जिहड़ी मेरी रिकॉर्डिंग है मैं आई वॉज नॉट सैटिस्फाइड, इस करके मैं दोबारा बोलण लगा। डिस्कस द मीनिंग ऑफ पावर, डिस्कस द मीनिंग ऑफ पावर and in this context explain the three-dimensional view of power as given by Stephen Lucas. ठीक है जी, हुण एक क्वेश्चन तुहानूं इदां भी आ सकता है, पंजाबी च लिख लो क्वेश्चन, शक्ति दे अर्थ दा वर्णन करो, शक्ति दे अर्थ दा वर्णन करो। इस संदर्भ विच स्टीफन ल्यूकस दे शक्ति दे तीन आयामी मत की व्याख्या करो, तीन आयामी मत की व्याख्या करो। ठीक है जी, हुण ये क्वेश्चन एक दूसरी तरह भी आ सकता है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ पावर एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर as given by Stephen Lucas। पंजाबी दे विच एक तीसरी तरह क्वेश्चन कितना आ सकता है तुहानूं, जिथे रॉबर्ट डाहल ने शक्ति दे एक आयामी व्याख्या की है, पीटर ब्रशट, मार्टिन ब्रशट ने शक्ति दे दो आयामां की व्याख्या की पैरवी की है, उत्थे स्टीफन ल्यूकस ने शक्ति दे
तीन आयामां दी व्याख्या तीन आयामां दी व्याख्या ਅਤੇ पैरवी की है। इन्हां तीनों मतां का वर्णन करो। वेयर रॉबर्ट डहल presented the one-dimensional view of power, Peter Brushett, Morton Brazzett presented the two-dimensional view of power. Stephen Lucas presented the three-dimensional viewpoint of power. Discuss these three dimensions of power. Discuss these three dimensions of power. ठीक है जी। हुण पहला जिहड़ा फेस है या जिहड़ा पहला आयाम है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन ल्यूकस, वो की सीगा डिसीजन मेकिंग पावर। सो वन डिमेंशनल जिहड़ा व्यू पॉइंट ऑफ पावर है, उसका संबंध निर्णय लैण दे नाल है। किसी भी व्यवस्था दे विच निर्णय किस तरह लाए जाते हैं, उन्हां निर्णयां दे लैण पिछे की मंतव हुंदा है, या उन्हां निर्णयां नूं कौन लैंदा है, इहदी व्याख्या करदा है जिहड़ा एक पक्षीय आयाम है शक्ति का। ठीक है जी। रॉबर्ट डहल जिहड़ा सीगा, उन्हें अपनी पुस्तक च, वो एक अमेरिकन विद्वान सी, गवान विच जिहड़ा रॉबर्ट डहल आ, वो की कहंदा है, निर्णय निर्माण दे रूप विच शक्ति की व्याख्या की है। मतलब उन्हें भी जिहड़ी गल स्टीफन ल्यूकस ने कही है कि डिसीजन मेकिंग पावर जिहड़ी है, वो किसी भी व्यवस्था दे विच एक महत्वपूर्ण जिहड़ा रोल है वो प्ले करती है जां अदा करती है, उहदा समर्थन कर रहे रॉबर्ट डहल। उन्हें की कहा, वो फर्दर की कहता है, उहदा ये मत है कि शक्ति का अर्थ ही फैसला निर्माण करन दी शक्ति, जो कि फैसले निर्माता की शक्ति हुंदी है, उसने ये भी कोशिश की है या व्याख्या की है कि किहड़ा कोल निर्णय लैण की शक्ति है, तो इहो जिहे निर्णय निर्मातावां दियां पसंदां या पहला की है। मैं तुहानूं पहले भी दस चुका, पहली गल निर्णय कौन लैंदा, उस निर्णय उन्हां निर्णय लैण दे पिछे मंतव की है या उद्देश्य की है। ठीक है। और जिहड़े निर्णय निर्माता हैगे आ या जिहड़े लोग निर्णय लैंदे आ, वो किहड़े आधार उत्ते वो निर्णय लए जांदे। मतलब कहण दा मतलब ये आ कि उन्हां कोल जां उन्हां दे मन दे विच कुछ इहो जिहियां प्रैफरेंसिस या जिन्हों प्रायोरिटीज कहने हैं, वो हुंदे है, उहदे आधार उत्ते जिहड़े है निर्णय निर्माता जिहड़े है निर्णय लैंदे। ठीक है जी। सो इस व्यू पॉइंट का समर्थन ल्यूकस ने भी किया है। ल्यूकस भी फैसला निर्माण नूं जिहड़ा हैगा एक शक्ति की बहुत व्यवस्थित रूप जिहड़ा है वो मन। हुण शक्ति प्रति दो आयामी मत, हुण जिहड़ा सैकेंड डिमेंशन हैगी है पावर की या सैकेंड फेस है, उन्होंने असी टू डिमेंशनल व्यू पॉइंट कहने हैं पावर का। ठीक है। इहदे विच इहदा समर्थन कौन कर रहा है, इहदा समर्थन किया है पीटर ब्रशट ने और मॉर्टन ब्रेसेट ने, और जिहड़े नव
एलिटिस्ट विचारक है उन्होंने किया। एलिटिस्ट मतलब हुंदा आपां मैनूं हुण याद नहीं आ रहा, मैं तुहानूं बाद दस दांगा। एजेंडा सैटिंग की गल कर रहे हैं। फैसला निर्माण के रूप में शक्ति, ठीक है जी। पावर एज डिसीजन मेकिंग, पावर एज एजेंडा सैटिंग, ठीक है जी। हुण ये जिहड़ा सैकंड डायमेंशन है इहदे नाल स्टीफन न्यूकस जिहड़ा है वो थोड़ा बहुता जिहड़ा है मतभेद जिहड़ा हैगा वो रखदा है। वन डायमेंशनल हुण ल्यूकस की कहता है टू डायमेंशनल थ्योरी ऑफ पावर। ल्यूकस टू डायमेंशनल थ्योरी ऑफ पावर इज एन एलिटिस्ट व्यू थ्योरीराइज, ये भी उन्हें ल्यूकस ने दी है। थ्योरीराइज्ड बाय ब्रेशट एंड ब्रेजेट, क्रिटिक ऑफ डायमेंशनल प्लूरलिस्टिक व्यू। पहले जी डायमेंशन है कौन दे रहा है, बहुलवादी विचारक दे रहा है, दे रहे हैं। और दूसरी जी है वो ਜਿਹੜੇ विशिष्ट वर्गीय विचारक है उन्होंने दी, ठीक है जी। डिमेंशनल ये जी पहला व्यू पॉइंट है ओदी गल कर रही है, ठीक है जी। एजेंडा सैटिंग की गल कर रही है बाय कीपिंग इश्यूज फर्स्ट डिमेंशन, ठीक है जी। ठीक है, उस तो बाद जो तीसरा है जोड़ा हूँ जिदा जोड़ा अपने ल्यूकस है उन्हें एक दसिया डिसीजन मेकिंग पावर पहली, फिर नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। नॉन डिसीजन मेकिंग पावर एजेंडा सैटिंग जड़ा है नॉन डिसीजन मेकिंग पावर दे विच जड़ा है आंदा है। इस तरह जो थर्ड जी डायमेंशन हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ है स्टीफन न्यूकस, मार्कस एंड रेडिकल एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट। आइडियोलॉजिकल पावर की गल कर रहे हैं, ठीक है। आइडियोलॉजिकल पावर बारे ਅਸੀਂ ਕੱਲ डिस्कस करांगे क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ बड़ियां टैक्नीकल चीज़ां हैगियां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ क्योंकि ये पेपर ਜਿਹੜਾ है in itself is a very theoretical paper and it needs more understanding than any another paper in MA classes, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच for attending my class.